Good afternoon, students. It is the continuation of components of money market. Under that, we have gone through bill market, but let us know some details about bill market. That is, bill market is one of the components of money market, and any country, if it is having a bill market, a well-developed bill market, what features it has? First one, the country, the practice of borrowing against commercial bills is very regular in such countries. Next, commercial banks are ready to provide credit against these commercial bills throughout the year. Next, there is a continuous and large supply of bills in such market. Continuous and large supply of bills in such market. Next, markets offer facilities for rediscounting these bills. These bills can be rediscounted. First time discounted, such bills again can be discounted. Like suppose Mr. A goes to the bank and discounts his commercial bills, and that commercial bank rediscounts it with central bank or RBI. So such facilities of rediscounting are available. The central bank is ready to rediscount these bills throughout the year. Commercial banks ready to provide credit on discounting of these commercial bills. Next, bill markets provide facilities for acceptances of these bills at a low cost, and large number of brokers and dealers in bills function to help smooth working of the bill market. Functioning of the bill market मतलब उस कंट्री में जो ब्रोकर्स और डीलर्स इन बिल्स होते हैं वो एक लार्ज फंक्शन में एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं ताकि बिल मार्केट स्मूथली वर्क करे. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ अबव क्राइटेरिया all these things are available. Secondary market is also available for the bills, but after looking into these criteria, we can declare that Indian bill market is underdeveloped bill market. And if a strong bill market is essential, or the working of the bill market should be good enough to have an effective link between credit agencies and RBI. The reasons for the poor development are historical. First one, people prefer to cash credit rather than going for raising funds through bills. Cash credit उनको आसान दिखता है bills discount करने के बदले. Next, lack of uniform practices with regard to bills. सारे लोग एक तरह की प्रैक्टिस अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब हर कोई बिल्स के साथ अलग अलग तरीके से डील करता है. नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑल्सो चार्जेस एक्सेसिव स्टैम्प ड्यूटी दैट ऑल्सो डिस्करेजेस देम फॉर गोइंग फॉर बिल्स. नेक्स्ट, नो एक्टिव सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट है तो भी सेकेंडरी मार्केट रीडिस्काउंटिंग का मार्केट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. नेक्स्ट, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंसेस सर्विस, जो कि बाहर के कंट्रीज में, डेवलप्ड कंट्रीज में जहाँ पे बिल मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पे डिस्काउंटिंग एंड एक्सेप्टेंस सर्विस हाउसेस है, जबकि इंडिया में ऐसी फैसिलिटी कमर्शियल बैंक से देता है, दूसरे ऐसी फैसिलिटीज देने वाले ऑफिसेस नहीं है. Next, it is difficult to determine the genuineness of the bills. मतलब बैंक्स ये फाइंड आउट नहीं कर सकते, बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि ये बिल कितना जेन्युइन है. ड्यू डेट पे, मैच्योरिटी पे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी गारंटी नहीं है. एंड नेक्स्ट, सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक्स प्रिफर टू होल्ड द बिल. Commercial banks prefer to hold the bill till maturity rather than rediscounting it with the central bank.
तो वो लोग चाहेंगे कि हम अपने पास ही रखे बिल, लास्ट डेट तक, ड्यू डेट तक सेंट्रल बैंक के साथ रीडिस्काउंट नहीं करते हैं मोस्टली, जिससे क्या होता है वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ बिल्स कम हो जाता है, जो कि सही नहीं है एक मार्केट के लिए। तेज बटन दबला। नेक्स्ट component of money market is commercial paper market. Commercial paper market क्या है? तो it is an unsecured money market instrument issued in the form of promissory note. तो ये एक unsecured money market instrument है, किस फॉर्म में इशू किया जाता है? promissory note के तौर पर। कौन इशू कर सकता है? तो इसको इशू कर सकते हैं प्राइवेट प्लेस्ड कॉर्पोरेट्स वगैरह इशू कर सकते हैं। तो इवन प्राइमरी डीलर्स या फिर इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी इसको इशू कर सकते हैं। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ? तो इन द ईयर 1990 में कमर्शियल पेपर्स को भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो मकसद क्या था इंट्रोड्यूस करने का? कि कॉर्पोरेट हाईली रेटेड कॉर्पोरेट कंपनीज को बोरोइंग करने का एक और सोर्स बनाना चाहते थे। तो डाइवर्सिफाइंग देयर सोर्सेस ऑफ शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, कंपनीज को शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स करने का ये एक तरीका है। तो कमर्शियल पेपर्स इशू करो और थोड़े दिन के लिए, महीनों के लिए हम लोगों से पैसे ले सकते हैं। ये फैसिलिटी सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं बल्कि प्राइमरी डीलर्स और इवन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी परमिशन दिया गया है कि कमर्शियल पेपर्स यूज कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं, ताकि शॉर्ट टर्म फंड्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो सके। द आरबीआई गिव्स गाइडलाइंस, जो भी आरबीआई के गाइडलाइंस गवर्न करते हैं द इश्यू ऑफ कमर्शियल पेपर्स इन इंडिया। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स मार्केट भी एक और कंपोनेंट ऑफ इंडियन मनी मार्केट है। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है? तो आरबीआई कहता है कि एक तरह का नेगोशिएबल मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। नेगोशिएबल क्यों? ए से बी को, बी से सी को ट्रांसफर हो सकता है। इसको किस फॉर्म में इशू किया जाता है? डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इशू किया जाता है या फिर एक यूजफुल प्रॉमिसरी नोट, यूसेंस मतलब यूजफुल प्रॉमिसरी नोट के तौर पर यूज किया जाता है। किसके अगेंस्ट ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं? तो सपोज आपका किसी बैंक में पैसा डिपॉजिटेड है, बैंक में या फिर किसी भी एलिजिबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपका मनी डिपॉजिटेड है, उसको क्या बोल सकते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इश्यू किया जाता है उसके आधार से स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए, और उसको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो दे आर डिफरेंट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट अलग है। कैसा अलग है? तो इनको फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं, बेच सकते हैं, किसी भी पर्सन को बेच सकते हैं, सेकेंडरी मार्केट में भी इसको बेच सकते हैं। और इसका ये बहुत ही लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, कभी भी इसको कैश में कन्वर्ट किया जा सकता, रिस्क लेस है। रिस्क लेस मतलब इसको ना आपका प्रिंसिपल ना आपको इसके ऊपर मिलने वाला इंटरेस्ट को कुछ धोखा है, तो रिस्क फ्री है ये। दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय आरबीआई in June 1989. Now, permitting banks to issue CDs, that is how widening the range of money market instruments. मतलब बैंक्स या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को शॉर्ट टर्म फंड्स बोरो करने का एक और इंस्ट्रूमेंट मिल गया बाय आरबीआई, और इन्वेस्टर्स को भी
अपने शॉर्ट टर्म फंड्स को से कुछ पैसा अर्न करने का एक सोर्स बन गया। अब हम देखेंगे ओरिजिनली जो गाइडलाइंस आरबीआई ने इश्यू किए थे उसके तहत मिनिमम अमाउंट ऑफ कमर्शियल डिपॉजिट था 25 lakhs, मल्टीपल्स ऑफ 25 lakhs और अप टू 1 करोड़ था। उसके बाद और इसका मिनिमम पीरियड था 3 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, मिनिमम जो मैच्योरिटी पीरियड ऐसा था। लेकिन बाद में थोड़ा मॉडिफाई करके आरबीआई ने क्या कहा, आप सीडीज जो कमर्शियल डिपॉजिट्स होते हैं उनको 1 लाख या 1 लाख के मल्टीपल्स में कितने भी इशू कर सकते और इसका मैच्योरिटी पीरियड 7 days से कम नहीं रहना चाहिए और 1 ईयर तक, नॉट मोर देन 1 ईयर, ऐसा बैंक्स के लिए। और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए मैच्योरिटी पीरियड 1 ईयर से कम नहीं रहना और 3 इयर्स तक रहना। तो ऐसे और लॉक इन पीरियड जो है 45 डेज से तक आप नहीं निकाल सकते इन पैसों को। सो दिस इज हाउ वी हैव फिनिश्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी मार्केट। थैंक यू।